Hello, my lovely students of class 7th. How are you all? I hope you all are fine. We have already done three exam papers, PT1 papers, math, science, and HST. This is the fourth paper. This is English. We are not going to waste our time and we are going to straight away. We are going to talk about the question paper. Section A, reading 10 marks. There will be two passages. Then there will be five MCQs or short answer questions. Let us go for this. The Whispering Woods. Deep within the valley lay the Whispering Woods, a place named for the strange rustling sounds that filled the air even on windless days. Local villagers believed that trees held centuries of secrets. A young girl named Maya decided to explore the forest to find the source of the whispers. Armed with a notebook and a small torch, she stepped onto a damp, mossy path. As she walked deeper, the canopy grew dense, blocking out the afternoon sun. Suddenly, she noticed that the rustling followed a rhythm almost like a soft lullaby. Lullaby होता है जैसे कि लोला. Following the sound, Maya reached a hidden clearing where a spectacular waterfall cascaded into a crystal clear pond. The wind rushing through the hollow rocks behind the waterfall was creating the mystical whispering sound. Smiling, Maya sat down to write the truth in her notebook, glad she had uncovered the forest's beautiful secret. तो इस पैराग्राफ ने हमें बताया कि घाटी के बीच विस्परिंग वुड्स नाम की एक रहस्यमय जंगल था। वहाँ बिना हवा के भी अजीब सरसराहट की आवाज़ें आती रहती थी। लोगों का मानना था कि पेड़ों में कई तरह के रहस्य छिपे हुए हैं। माया नाम की लड़की इस आवाज़ का सच जानने के लिए जंगल में गई। हाथ में टॉर्च लिया, नोटबुक लिया और वह जो काई से भरा हुआ रास्ता होता है, जहाँ पर काई होती है, उस पर चल पड़ी। अंदर बहुत अंधेरा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई लोरी गा रहा है, इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। आवाज़ के पीछे-पीछे माया एक खूबसूरत झरने के पास पहुँची। वहाँ पर एक साफ तालाब था। दरअसल जो झरना था, उसके पीछे की जो चट्टानें थी, वो खोखली थी और हवा के टकराने के कारण वहाँ से आवाज़ आ रही थी। तो सच जानकर माया मुस्कुराई और उसने अपने नोटबुक में लिख लिया। वह जंगल का सुंदर रहस्य खोजकर बेहद खुश थी। चलिए, अब पढ़ते हैं आगे, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। Why was the forest called Whispering Wood? Villagers shouted secrets there. The trees talked to each other. Strange rustling sounds filled the air. Maya sung the songs in the uh, woods. So, इसका correct answer है C. सेकंड है, what did Maya take with her to the forest? तो वो लेकर गई थी एक नोटबुक और एक टॉर्च. What blocked of the afternoon sun as Maya walked deeper? तो जो डेंस कैनोपी थी उसने उसको ढक रखा था. What was the actual source of whispering sound? तो जो विंड थी वो जब हॉलो रॉक से टकरा रही थी तो वहां से आवाजें आ रही थी. सी. फिफ्थ है, हाउ डिड माया फील एट द एंड ऑफ हर जर्नी? तो उसको काफी खुशी हो रही थी और रिलीव्ड महसूस कर रही थी. तो ग्लैड एंड रिलीव्ड इज द करेक्ट आंसर. Next is the mighty ant colony. Ants are among the most industrious creature on earth. A single ant can lift objects up to 20 times its own body weight. They live in highly organized communities called colonies, which can contain millions of individuals. Within a colony, every ant has a specific job. The queen ant is the largest and is responsible for laying thousands of eggs to ensure the colony survives. Worker ants, which are all female, forage for food, clean the nest, and take care of young larvae. Soldiers and guard the entrance of the nest to protect it from enemies like spiders or rival ant colonies. Ants communicate with each other using special chemicals called pheromones. By leaving a scent trail, an ant can guide its nest mates directly to a newly discovered food source, making teamwork their ultimate strength. तो चींटियाँ जो है वो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में से एक है। एक अकेली चींटी अपने वजन के 20 गुना जो वजन है उतनी भारी वस्तु उठा सकती है। वह कॉलोनी नामक जो समूह है उसमें ग्रुप्स में रहती है जिसमें लाखों चींटियाँ हो सकती हैं। कॉलोनी में हर चींटी का काम तय होता है। रानी चींटी सबसे बड़ी होती है, अंडे देती है और जो आपकी वर्कर एंट्स होती हैं ये चीट भोजन ढूँढती हैं, घोंसला साफ करती हैं, बच्चों की देखभाल करती है
और गार्ड एंट्स जो होती हैं वो दुश्मनों से घोंसलों की रक्षा करती है। चींटी आपस में बात करने के लिए फेरोमोन नामक एक केमिकल का इस्तेमाल करती है और गंध की मदद से वे अपनी टीम को भोजन तक पहुंचाती हैं। आपसी तालमेल ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इनको भी देखते हैं एक बार। फर्स्ट क्या है, हाउ मच वेट कैन अ सिंगल एंट लिफ्ट? तो वो 20 टाइम्स उठा सकती है। व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वीन एंट? तो वो जो है अंडे देने के काम आती है। विच एंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेजिंग एंड क्लीनिंग? क्लीनिंग के लिए कौन सी एंट होती है? वर्कर एंट्स। और हाउ डू एंट्स कम्युनिकेट विद वन अनदर? वो फेरोमोन्स का इस्तेमाल करती है। और व्हाट डू सोल्जर्स एंड्स प्रोटेक्ट द कॉलोनी फ्रॉम एनिमीज लाइक स्पाइडर्स? इस तरीके से वो करती है। सेक्शन बी, राइटिंग एंड ग्रामर। यहाँ पर आपको दे रखा है राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे प्रेजेंट। या फिर और में है यू आर अ स्कूल कैप्टन, राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स अबाउट द एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर स्टूडेंट्स फॉर ग्रेड 6 to 8. Remind students to collect their health checkup cards from the class teacher. Include all the necessary details about date, time and venue. ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं बर्थडे प्रेजेंट की। तो यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ मैंने कैनॉट प्लेस दिल्ली का एड्रेस लिखा है। डियर अंकल, आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल बर्थडे गिफ्ट। I love the smartwatch very much. It is exactly what I wanted, and all my friends at school thought it was really cool. It will help me in many ways. I missed you at my party, but your gift made my day very special. Thank you for always being so kind and thoughtful. Please give my regards to auntie and love to cousins. I hope to see you very soon. With love, Jacob. और में हमें यहाँ पर लिखना था नोटिस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक से ही उठाया है मैंने। आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली नोटिस। यहाँ पर आपको डेट लिखनी है 2026, इस तरीके से 12 जुलाई। एनुअल हेल्थ चेकअप, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 to 8। ये आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया हुआ है। अबाउट द एनुअल हेल्थ चेकअप, डेट मंडे एंड ट्यूसडे 27-28 जुलाई। टाइम हमने 9 AM पे 12:15। वेन्यू स्कूल मेडिकल रूम। All students are requested to bring their health cards for checkup. For queries or further details, contact the undersigned Asma in charge. उसके बाद ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इनको भी देखते हैं। Fill in the blanks with correct preposition. The teacher greeted them warmly and started the lesson dash numbers about the numbers, है ना, about numbers। तो यहाँ पर about आ जाएगा। Janvi listened attentively, feeling excited डैश द न्यू एडवेंचर अहेड। ये भी अबाउट आएगा, तो यहाँ दोनों में ही अबाउट आएगा। करेक्ट प्रीपोजिशन। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। देन थर्ड है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल एडवर्ब। आपको यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। एडवर्ब में नॉर्मली जो है अधिकतर एडवर्ब के एंड में जो है एल वाई लगता है, आई होप आपको पता होगा। तो आफ्टर थॉरोली वाइपिंग हिज शूज ही स्टेप्ड डैश। तो क्योंकि ये आपकी बुक से लिया हुआ है, बुक में यहाँ पर था केयरफुली, तो आप इसको लिख देंगे यहाँ पर केयर और फुली आगे इस तरीके से लिख देंगे केयरफुली। द चिल्ड्रन प्लेड डैश अंटिल डार्क। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हैप्पीली। तो इस तरीके से आप यहाँ हैप्पीली लिखने ना, द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली अंटिल डार्क। नेक्स्ट बढ़ेंगे, फोर्थ क्या है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट आपको यहाँ पर यूज करना है। आधे आधे मार्क्स का है, 1 मार्क का टोटल है यहाँ पे। सिंस बिकमिंग एन एनिमल डॉक्टर, डॉक्टर डू लिटिल डैश लर्न टू कम्युनिकेट विद ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट देखना है, लर्न का इस्तेमाल करना है। तो क्योंकि ये परफेक्ट है तो इसमें हैज या हैड इस्तेमाल होता है, लेकिन क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हैज लर्नड, ईडी इसके एंड में लग जाएगा और हैज पहले लग जाएगा। हैज लर्नड टू कम्युनिकेट विद ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स। ही डैश ट्रीट काउंटलेस फार्म्स एनिमल्स एंड पेट्स विद केयर। तो यहाँ पर ही हैज ट्रीटेड, सेम यही चीज आएगी जो यहाँ पर है, काउंटलेस फार्म एनिमल्स एंड पेट्स विद केयर। फिफ्थ है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स आपको यहाँ इस्तेमाल करने हैं। द न्यू टेक्नोलॉजी इज सेट टू डैश ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर टेक ओवर आएगा। द न्यू टेक्नोलॉजी इज सेट टू टेक ओवर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये फ्रेजल वर्ब हो गया। आई ट्राइड हार्ड टू डैश what the writer wanted to say but was unsuccessful।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेक आउट, आई ट्राइड हार्ड टू मेक आउट व्हाट द राइटर वांटेड टू से बट वाज अनसक्सेसफुल। ये भी आपके टेक्स्ट बुक का है। सिक्स्थ है आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको मॉडल वर्ब ढूंढना है। दे माइट अराइव्ड लेट ड्यू टू ट्रैफिक। तो मॉडल वर्ब यहाँ पर क्या है? माइट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिटरेचर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन डिस्पेयर एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी and after a while he pondered there. I'll give it all up, he said he. Now just at that moment the spider dropped with its silken filmy clue. तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस इन द लाइन एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर। द वर्ड पॉन्डर्ड का मतलब क्या है, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो पॉन्डर्ड का मतलब होता है सोचना, तो या सोच। तो यहाँ पर पॉज, थॉट, नोटिस्ड करेक्ट है बी, थॉट। सेकेंड है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। द फ्रेज सिल्कन फिल्मी क्लू क्रिएट्स एन इमेज ऑफ समथिंग दैट इज कैसा है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? लॉन्ग एंड लाइट या वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट। तो सिल्क है जो सिल्क को हम नॉर्मली डेलिकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट। फिर उसके बाद है आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको किसी 6 क्वेश्चंस का आंसर देना है। मैं सबका दूंगा क्योंकि मुझे तो डिस्कस करना है पेपर आपके साथ। पहला है व्हाई शुड जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस। सेकंड है व्हाई डज द ऑथर बिलीव दैट द सेंस ऑफ साइट इज मोस्ट वंडरफुल। तो जानवी को फॉलो should follow the reverse advice because it gives her courage to overcome her fear of going to school. It also encourages her to study and learn to read and write. The author believes that the sense of sight is most wonderful because it lets us see the beauty, colors, and variety of the world around us. Third question है which qualities of Dr. Dolittle made him famous among the animals? So he became famous among the animals because he was kind, patient, and could understand their language. He listened to their problems and cared for them with love. E है आपका describe how King Bruce attitudes changed from beginning towards the end of the poem. तो पहले जो है किंग ब्रूस काफी सैड था, ही वांटेड टू गिव अप, है ना। बाय द एंड ऑफ द पोएम द स्पाइडर इंस्पायर हिम टू बिकम होपफुल, ब्रेव एंड डिटरमिन्ड टू ट्राई अगेन, इसलिए पोएम का नाम भी था ट्राई अगेन। ई है व्हाट डज द पोएट विश टू कन्वे बाय हाईलाइटिंग द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ फनी मैन। The poet wants to show that it is good to be different and happy in your own way. The funny man's strange action made people laugh and enjoy his imagination. F है explain how Dr. Dolittle gave equal and individual attention to each animal who came to him for treatment. Dr. Dolittle gave equal attention to every animal by listening carefully to its problem and giving the right treatment. He cared for each animal according to its need. G is how did the river know so much about Janvi? The river knew so much about Janvi because Janvi जो है visit करती थी it almost every day and shared her thoughts, dreams and fears with river. Third है answer the following question in about 30-40 words. आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है write the summary of the poem The Day River Spoke. The poem tells the story of Janvi who hears a river speaking to her. The river shares its wisdom and encourages her to keep moving forward with courage, kindness, and hope. It explains that life is full of changes and challenges, just like a flowing river. The poem teaches us to remain positive and patient and determined. इसी के साथ और में आपको क्वेश्चन मिला है, आपको एक एक्सट्रैक्ट मिला है, उसको पढ़ के आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। Read the extract given below and answer the questions that follow. You never heard in all your life such a funny feeling sound. My friend, why do you wear two hats upon your feet? I said he turned the other way about and hopped home on his head. Choose the line from the extract which tells us that the sound was unique. तो वो लाइन है you never heard in all your life such a funny feeling sound. तो वो आपने यहाँ लिखोगे हैं। Complete the sentence with an appropriate reason. The poet calls the funny man my friend because uh,
ऐसा इसलिए है बिकॉज़ ही स्पीक्स टू हिम काइंडली विदाउट फियर, वो बिना किसी डर के उससे बात कर रहा था इसलिए। व्हाट डज़ द रिएक्शन ऑफ द फनी मैन्स टू द पोएट्स क्वेश्चन टेल अस अबाउट हिम? तो फनी मैन का रिएक्शन स्ट्रेंज था, ह्यूमरस था और वो अलग तरीके से एन्जॉय करता है। ही एन्जॉयज़ बिहेविंग डिफरेंटली। इसी के साथ इसका फोर्थ है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट मेक्स द रीडर्स बी dreamy, impatient, worried या cheerful. Correct answer cheerful. Then spelling will be of 2 marks. Fill in the blank. She is a dash brave girl. True or truly brave girl? So she is a truly brave girl. Circle the incorrectly spelled word. यहाँ पर correct spelling कौन सी है inspire की? Inspire, inspire, inspire. तो ये हो गया, ये हो गई correct. Make a compound word starting with fun. बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे fun fair हो सकता है, fun day हो सकता है, जो आपके मन में आए, ठीक है। Complete the spelling. A small seedless raisin is actually currant. CURRANT. तो यहीं पर आपका पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और कोई सवाल हो मन में तो मुझे जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। ठीक है, बाय बाय।